Let R be the relation defined on A, then the converse of R denoted by R bar is the relation on A defined by A is R bar related to B if and only if B is related to A for all A and B belonging to A. माने ये जो कन्वर्स रिलेशन R का जो हम R बार से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें दो एलिमेंट A और B R बार के अंडर रिलेटेड होंगे if and only if B is R related to A. माने इधर A is R bar related to B if and only if B is R related to A for all A and B belonging to A. So अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, then in that case we will say that ये R बार ये एक रिलेशन होगा अगर ये मतलब सॉरी A और B R बार से इस तरह रिलेटेड होंगे अगर B और A R से रिलेटेड हैं तो. So if R is the partial order denoted by this on A, then R bar is denoted by माने अगर R bar इस ढंग से denoted है तो R bar के लिए उसका opposite sign हम कर देंगे. अब जो भी यहाँ पे हो, जैसे यहाँ डिवीजन हो जाए मतलब सॉरी यहाँ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एंड लाइक दैट. Okay, if A comma R is a poset, then A comma R bar is also a poset. A कोई सेट है जिस पे रिलेशन R डिफाइंड है. And if we say that AR is a poset, then AR bar भी एक poset होगा. Let's see the proof. Let A belong to R, then R is reflexive. क्योंकि poset है तो R को poset है तो R reflexive होगा, anti symmetric होगा और transitive होगा. Reflexive है इसका माने A is R related to A for all A belonging to A. अब A is R related to A, इस A को इधर ले जाएंगे, इस A को इधर ले जाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं because it's the same A. So we can write as A is R bar related to A for all A belonging to A. That tells you that R bar is reflexive. Next thing इसको poset proof करने के लिए जो हमें चाहिए वो है antisymmetric. So let A be R bar related to B and B be R bar related to A. तो अगर हम प्रूफ कर दें, अगर ये दोनों होल्ड कर रहे हैं तो A इक्वल टू B होगा तो हमारा हो जाएगा कि R बार एंटी सिमेट्रिक है. ओके, नाउ A is R bar related to B implies B is R related to A by definition of R bar, and the same way B is R bar related to A means A is R related to B. अब क्योंकि ये जो है हमारा एक पोसेट है तो R बार क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा. So B R related to A and A R related to B will imply A is equal to B. तो हमने क्या प्रूफ हम क्या लेके चले थे, A is R bar related to B and B is R bar related to A, और हमें क्या मिल रहा है, A is equal to B. So that tells us that R bar is antisymmetric. Third is transitive. So let A be R bar related to B and B be R bar related to C. हमें प्रूफ क्या करना है, A is R bar related to C. Now A R bar related to B implies B is R related to A. By definition, B is R bar related to C implies C is R related to B again by definition. Now R is a poset. A comma R is a poset, so R has to be transitive. So transitivity क्या देती है, C is R related to A. C's are related to B and B's are related to A, so C is R related to A. This tells you A is R bar related to B. That tells you R bar is transitive, and hence R bar is a partial order relation, and therefore A comma R bar is a poset. And this you can prove that AR bar is dual of AR. Dual और primal में आपको relation पता है कि अगर एक पोसेट दूसरे का dual है तो क्या होता है. So dual means अगर ये इस पर relation है तो ये इस पर relation है. So आपने एक बार ये theorem proof कर दी. So this is another way of showing that
ए आर बार इज डुअल ऑफ ए आर. अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको आता है प्रूफ दैट ए आर बार इज डुअल ऑफ ए आर, देन द सेम प्रूफ यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू पोसेट. जैसे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है जो आप लोग ने पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. उसी तरह हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू पोसेट्स है. लेट ए एंड बी बी टू पोसेट्स अंडर द रिलेशन. अब दो पोसेट्स हैं, दोनों इस पोसेट में एक रिलेशन होगा, इस पोसेट में एक रिलेशन होगा. तो ए में जो रिलेशन है उसको हमने सब्सक्रिप्ट 1 से डिनोट कर दिया और बी में जो रिलेशन है उसको सब्सक्रिप्ट हमने 2 से डिनोट कर दिया. अब देखिए दो डिफरेंट सेट्स पे अगर रिलेशन डिफाइंड है, दे कुड बी टू डिफरेंट रिलेशंस, दे कुड बी द सेम रिलेशन आल्सो. सो जस्ट जनरलिटी के लिए हमने दो अलग अलग रिलेशंस इन पे कंसिडर कर लिए, बट दोनों पे सेम भी हो सकते हैं. देन ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग set of all a comma b such that a belongs to a, b belongs to b, form a poset under the relation defined by a1 comma b1 is related to a2 comma b2 if a1 is related to a2 under the relation defined in a and b1 is related to b2 under the relation defined on b. तो ये जो रिलेशन है, ये हमारा जो रिलेशन है ये है ए क्रॉस बी का, और ये जो रिलेशन है ये है हमारा ए का, और ये रिलेशन है हमारा बी का. ये हम आपको अलग से इस डेफिनेशन में बता दे रहे हैं, बट आगे जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग सब जगह एक ही नोटेशन यूज करेंगे ताकि बार बार वो सब्सक्रिप्ट छोड़ने का, कहीं छूट गया अगर सब्सक्रिप्ट तो फिर उससे हमारा गलत हो जाएगा. बट समझने के लिए आपको सब, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है ये ए और दो, अगर बी दो पोसेट्स हैं तो इनके ऊपर डिफरेंट रिलेशंस भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. इसीलिए हमने A1 पे ये वाला सब्सक्रिप्ट 1 वाला रिलेशन लिया है, बी पे सब्सक्रिप्ट 2 वाला लिया है, और ए क्रॉस बी पे हमने रिलेशन, अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इन पे रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, A1 कॉमा B1 is related to A2 comma B2 if A1 is related to A2 under the relation defined in A and B1 is related to B2 under the relation defined on B. So this should be automatically understood कि अगर इस तरह का है तो ये जो रिलेशन है ये A का होगा, ये रिलेशन B का होगा. Okay, now let's see the theorem. If A and B are two posets, then A cross B is also a poset and under this relation defined above. रिलेशन डिफाइन अबव क्या है, ये वाला रिलेशन है जो हम लोग ने अभी डिफाइन किया था, सॉरी, कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड होंगे अगर उनके फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में फर्स्ट पोसेट के अंदर रिलेटेड होंगे और सेकंड कंपोनेंट्स सेकंड पोसेट में अंडर द गिवन रिलेशन रिलेटेड हैं. दैट इज दिस वन. ओके, लेट ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी. इसका मतलब क्या हुआ, A belongs to A and B belongs to B by definition of A cross B. This implies A is related to A and B is related to B. Why? Because A आपका एक पोसेट है, B आपका पोसेट है, तो A पोसेट है तो उस पे जो रिलेशन डिफाइंड होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, B पोसेट है तो उस पे डिफाइंड रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होगा. इसलिए A is related to A and B is related to B for all A in A and B in B. This tells you A comma B is related to A comma B, which tells you that this relation is reflexive on A cross B. Antisymmetric. So let A1 B1 be related to A2 B2 and A2 B2 be related to A1 B1. Now what we have to prove is A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. Now A1 comma B1 is related to A2 comma B2 implies A1 is related to A2 under the relation defined in A and B1 is related to B2 under the relation defined in B. The same thing here, A2 is related to A1 under the relation defined in A and B2 is related to B1 under the relation defined in B. अब देखिए यहाँ पे A1 is related to A2 and A2 is related to A1 under the relation defined on set A.
but A along with the given relation is a poset, so it is antisymmetric. So this tells you that A1 is equal to A2. The same way, you have B1 is equal to B2, and therefore you have A1 comma B1 equal to A2 comma B2. That tells you that this relation on A cross B is antisymmetric. The same way, transitivity. Let A1 B1 be related to A2 B2 and A2 B2 be related to A3 B3. This will imply A1 is related to A2, and this will imply A2 is related to A3. अब ये relation कहाँ hold कर रहा है? Set A में. Set A along with the given relation is a poset. Therefore, it will be transitive, and therefore A1 is related to A3. The same way, you have B1 is related to B3, and this gives you A1 comma B1 is related to A3 comma B3, or in other words, this relation on A cross B is transitive. और अब क्योंकि हमने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, so therefore this Cartesian product of two posets along with the given relation is a poset. Isomorphic posets. Let A comma R and B comma R dash be two posets. A 1-to-1 mapping F from A to B is called isomorphic if X are related to Y implies and is implied by Fx is R dash related to Y for all xy belonging to A. That is F preserves partial order. तो अगर कोई भी अगर हमारे पास दो पोसेट्स हैं, अगर हम एक मैपिंग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट A to B which is 1-to-1 and which preserves this partial order, माने अगर दो एलिमेंट R में रिलेटेड हैं तो वो एलिमेंट उनका F इमेज R डैश में रिलेटेड होगा, then such a mapping is called as then this is called as then the set these two posets are called as isomorphic posets. Now let's see a theorem. Let a poset A be isomorphic to poset B, and F from A to B F from A to B be isomorphic from A onto B. Then माने ये दोनों isomorphic है, माने there exists a 1-to-1 mapping which preserves partial order and it's onto. ये देखिए यहाँ पे it's given it's onto also. Then an element A belonging to A is the least element of A if and only if FA is least element of B. माने A का जो least element होगा उसकी image जो B में होगी, so वो B का least element होगा. The same thing, an element B belonging to A is greatest element if and only if F of B, ये B होगा, A नहीं होगा. If F of B is greatest element of B, an element A belonging to A is minimal element of A if and only if A is minimal element of B. तीनों proof एक जैसे ही हैं. We'll do one of this and the others you can try. पहला वाला लेके चलते हैं. Let A belong to A be the least element of A. अब and we have to prove that F of A is least element of B. Now let we start with the element in Y in B. Now since F is bijective क्यों? It is 1-1 because of isomorphic definition and onto. So F is 1-1 and onto, therefore it's bijective. So there exists a X belonging to A such that Y is equal to F of X. माने कोई भी एलिमेंट आप B में लेंगे तो उसकी प्री इमेज A में एग्जिस्ट करेगी. So Y is equal to Fx. अब ये X A को बिलोंग कर रहा है and A is the least element of A. So that means A is at a lower level than X for any X in A because A is the least element. So सबसे lower level पे ये आपका lie करेगा. Now this implies F of A is at a lower level than F of X because F is isomorphic. So it preserves partial order.
माने अगर a x से लोअर लेवल पे है सो f of a f of x से लोअर लेवल पे होगा. बट व्हाट इज f of y, सॉरी f of x क्या है, इट्स y. सो दिस विल गिव यू f of a is at a lower level than y for all y belonging to b. माने अगर आप b का कोई भी एलिमेंट लेते हो वो f of a से हायर लेवल पे होगा. दैट मीन्स व्हाट, f of a is the least element of b. सो ये तो हो गया हमारा if पार्ट कि अगर a लीस्ट एलिमेंट है so f of a भी लीस्ट एलिमेंट होगा. अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं बिकॉज दिस इज if and only if. So converse is let f of a be the least element of b and you have to prove a is the least element of a. Yeah, a is at a lower level than x for all x belonging to a. F of a is least element of b means f of a is at a lower level than y for all y belonging to b. Now x belongs to a. This tells you that f of x belongs to b because f is isomorphic. So, sorry, because f is bijective, and this implies that f of a is at a lower level than f of x because a is the least element of b. This tells you that a is at a lower level than x because f is isomorphic, and this tells you that a is the least element of a. So we have proved both the parts कि अगर a का a लीस्ट एलिमेंट है तो f of a b का लीस्ट एलिमेंट होगा, या अगर b f of a b का लीस्ट एलिमेंट है तो a का लीस्ट एलिमेंट होगा. अपग्रेड अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट में के लिए क्या होगा, ये जो भी आपने ये जो आपने लिखा था a इज एट अ लोअर लेवल देन x, उसमें आप क्या लिख देंगे, b इज एट अ हायर लेवल देन x, और वो एग्जैक्टली इसी तरह प्रोसीड करेंगे. सो यू विल गेट द b पार्ट, द सेकंड पार्ट, एंड सिमिलरली यू विल हैव द थर्ड पार्ट. सो एग्जैक्टली द सेम लाइंस ऑफ प्रूफ यू हैव टू रिपीट, खाली ग्रेटेस्ट और मिनिमल का वो साइन देख के, बाकी कुछ भी नया नहीं है उस प्रूफ में. सो दैट यू कंप्लीट योरसेल्फ. ओके, अब देखिए हमने कहाँ से रिलेशन स्टार्ट किया था. फिर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, जो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो. फिर वी केम टू पोसेट्स. पोसेट्स में वाज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जिसमें हमारा रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव था. अब पोसेट को लेके हम लेटेक्स डिफाइन करेंगे. अ पोसेट माने अ सेट L with this relation. So this is a poset where this is a partial order relation. So a poset is said to be lattice if two elements in L have a unique least upper bound and a unique greatest lower bound. Least upper bound को as you know supremum भी बोलते हो, and greatest lower bound को you can denote by infimum also. और least upper bound ये supremum इस केस में हम डिनोट करते हैं A. ये आपको सिंबल याद होगा, दिस इज सिंबल ऑफ कंजंक्शन विच वी वर यूजिंग इन लॉजिक. और ये क्या था, सॉरी, दिस वाज डिसजंक्शन एंड दिस वाज कंजंक्शन इन लॉजिक. बट यहाँ पे हम इसको मीट एंड जॉइन बोलेंगे. इस सिंबल को हम लोग बोलेंगे, दिस वी विल रीड एज A मीट B. एंड इसको बोलेंगे, I think so I am doing the other way around. कहीं लिखा नहीं है, एक मिनट. हाँ, यहाँ लिखा है, सॉरी, वेट 1 मिनट. हाँ, ये लिखा है सुप्रीमम को हम ज्वाइन बोलते हैं, या दैट इज व्हाट आई थॉट. मीट तो इंटरसेक्शन के साथ हो जाएगा. ओके, सुप्रीमम या जो आपका लीस्ट अपर बाउंड है. सो इन दैट दिस इज रेड एज ज्वाइन ऑफ A and B, and this is read as meet of A and B. So either you can call like this, or you can say A join B and A meet B. All these symbols can be used interchangeably.
Okay, now let's see the एक दो example देखते हैं latex के. Let consider a set of natural numbers with the relation division a divides b. Then a join b is LCM of a and b. LCM means least common multiple of a and b, and therefore it will belong to set of natural numbers. A meet b is defined by greatest common divisor of a and b, and that will also be a natural number, so it belongs to n. So n along with this relation of divisibility forms a latex. आप कुछ भी try कर सकते हैं. You can take any elements and try. अगर आपको LCM और GCD पता है कैसे कैलकुलेट करना है, so you can just check up that it will be a latex. अब हम डायग्राम से देखना बताते हैं आपको. सपोज ये किसी भी पोसेट का एक हिस्से डायग्राम है एंड वी वांट टू चेक वेदर दिस इज अ लेटेक्स और नॉट. अब लेटेक्स में क्या था, इफ एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस पोसेट हैज अ यूनिक लीस्ट अपर बाउंड एंड अ यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. पोसेट में जब हमने देखा था, हमने ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, तो हमने देखा था लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट. और अगर एग्जिस्ट हो भी रहा था तो जैसे हमने देखा था मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट जो था वो कई बार आपका एक यूनिक नहीं था. बट इस केस में इस हर दो एलिमेंट का लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को एग्जिस्ट भी करना चाहिए एंड यूनिक भी होना चाहिए. नाउ लुक हियर, इफ यू टेक द जॉइन ऑफ ए एंड सी, अब ए और सी के ऊपर देखिए कुछ भी नहीं है, सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी डज नॉट एग्जिस्ट. So this is not a latex. अब यहाँ देखिए हमने A और okay, this will be A and C, not A and B. A and C does not exist. इसी तरह E और F आप देखें, E और F के नीचे आपको कोई एलिमेंट नहीं दिखेगा. That means greatest lower bound of E and F does not exist. Therefore, this is again not a latex. अब जैसे हमें ये एग्जाम में आया, आपने खाली ये फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, then also it's sufficient because हमने दिखा दिया एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ एलिमेंट है जिसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या आपने ये दिखा दिया, दैट इज आल्सो सफिशिएंट बिकॉज हमने एक पेयर ऑफ एलिमेंट दिखा दिया जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ लेटेक्स. अब ऐसे तो आप काफी सारे दिखा सकते हो. ए और डी का भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, लीस्ट अपर बाउंड बी और एफ का नहीं करेगा. देयर आर मेनी पेयर्स, बट अगर आपने एक का भी दिखा दिया दैट्स मोर देन एनफ. अब चलिए इसमें हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स लेटिसेस. इसके पहले एक और चीज हम देखें. देखिए ए यूनियन सी का हमने दिखाया कि ये इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. माने आप ये देखिए, दिस इज ओपन अपवर्ड्स, माने ये ए और सी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं. इसी तरह ई और एफ के नीचे एम्प्टी स्पेस है, ये दोनों कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं. तो एक चीज तो आपको इससे समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इसमें इस तरह का एक सिंगल टॉप नहीं है और यहाँ पे एक सिंगल बॉटम नहीं है, देन दिस विल नॉट बी अ लेटेक्स. जैसे इस केस में सिंगल टॉप नहीं है, यहाँ पे आपके कितने टॉप्स हैं, दो हैं, ए और सी, और यहाँ पे आपके कितने बॉटम्स हैं, ई एंड एफ. टू बॉटम एलिमेंट्स एंड टू टॉप एलिमेंट्स. तो top is not unique and bottom is not unique, so you can be 100% sure this will not be a latex. कुछ एग्जाम्पल आप उसमें देखेंगे, सिंगल टॉप सिंगल बॉटम होने के बावजूद भी वो लेटेक्स नहीं है, सो दैट वी विल सी. बट जहां आपने एक ऐसे डायग्राम देखा जिसका सिंगल टॉप नहीं है, या सिंगल बॉटम नहीं है, या दोनों ही नहीं है, स्ट्रेट अवे यू कैन से दैट दिस इज नॉट अ लेटेक्स. चलिए आगे देखते हैं. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डायग्राम Which of the following has a diagram in the below figures represent lattices? अब देखिए इसका सिंगल टॉप पे भी सिंगल एलिमेंट है, बॉटम पे भी सिंगल एलिमेंट है, तो ये लेटेक्स हो सकता है. नाउ लेट्स चेक वन बाय वन. ए और बी का जॉइन क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ए और बी का जॉइन कैसे होगा, ए एंड बी इज नथिंग बट लीस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड छोड़ो, इसको सुप्रीमम कर देते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी. अब ए और बी में से कौन सा एट अ हायर लेवल है, बी, सो दिस विल बी बी, एंड बी बिलोंग्स टू दिस ऐसे डायग्राम. सो
दिस A join B exist in this one. इसी तरह से, या आप अगर लीस्ट अपर बाउंड के सेंस में देखना चाहें, सो A join B के अपर बाउंड्स क्या होंगे? B C D. अब B C D में लीस्ट अपर बाउंड क्या है? B. So that is why A join B is equal to B. इसी तरह से अगर आप BC ले लें, B और C का ज्वाइन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. C और D का ज्वाइन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. इसी तरह C और D का क्या कहते हैं, मीट क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. C और B का मीट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. B और A का मीट क्या हो जाएगा? A हो जाएगा. सो इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उसका यहाँ पे अब आप देखिए A और C का अगर ज्वाइन ले लें तो C हो जाएगा. D और A का मीट ले लें तो A हो जाएगा. माने इसमें आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, उसका जो मीट होगा और उसका जो ज्वाइन होगा वो दोनों इसी में है. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ चेन एंड यू नो एक चेन में हर दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस इज अ टोटली ऑर्डर्ड सेट, और टोटली ऑर्डर्ड सेट वो होता है जिसमें हर दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. दैट इज व्हाई दिस विल बी अ लेटेक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकेंड वन. अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको देखें, यहाँ पे हमारा सिंगल बॉटम है बट सिंगल टॉप नहीं है. यहाँ पे हमारे टॉप पे दो एलिमेंट्स हैं. सो स्ट्रेट अवे यू कैन से दिस इज नॉट अ लेटेक्स बिकॉज यहाँ पे F और G का ज्वाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जैसे हमारे यहाँ पे था A और C का ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी तरह यहाँ पे हमारे F और G का ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. देयरफॉर इट इज नॉट अ लेटेक्स. थर्ड वाले के बारे में क्या कहेंगे? यस मैम, ये होगा लेटेक्स. होगा. ओके, एनीबडी एल्स? सौरभ तो बोल रहा है होगा. और कोई? Okay, let's see. It has got a single bottom, that is A, and single top, that is E. ये तो हो गया. तो इसका माने अब हम आगे बढ़ सकते हैं चेक करने के लिए ये लेटेक्स है या नहीं है. अब A C का ज्वाइन क्या है? C है. A B का ज्वाइन क्या है? B है. A और D का ज्वाइन क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से बिकॉज ट्रांजिटिविटी होल्ड्स, सो A D का ज्वाइन क्या हुआ? D हुआ. इस तरह से अगर D E का ज्वाइन क्या होगा? E होगा. इस तरह से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो उनका ज्वाइन इसमें ही प्रेजेंट है. इसी तरह मीट की बात कर लेते हैं. अगर A और C की बात करें तो A और देखिए E से D गए, D से C गए, तो E से लोअर लेवल पे है C, तो इन दोनों का मीट क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. इसी तरह अगर B और D की बात करें तो इन दोनों का मीट क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. सो इस तरह से आप कोई भी दो एलिमेंट चेक करेंगे, सो उन एलिमेंट्स every pair of elements will have meet and join in this only, and therefore this will be a latex. चलो अच्छा आगे देखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज शो दैट एवरी चेन इज अ लेटेक्स. ये तो हमने एग्जांपल से तो देख लिया. नाउ लेट्स प्रूव इट. L comma this relation be a chain. So this is chain, that means a set with a relation in which every two elements are related. So अगर हम दो एलिमेंट L में लेते हैं, so या तो A will be at a lower level than B और B will be at a lower level than A because it's a chain. तो इन दोनों में से एक ना एक तो होल्ड करेगा ही करेगा. So let's start with this one. We can take because जो प्रोसीजर इसके लिए होगा, अगर आप ये लेके चलेंगे तो उसके लिए भी आप वही प्रोसीजर ले सकते हैं. नो हार्म. और दोनों तो वी व्हाट वी डू इज वी अज्यूम A is at a lower level than B. Then A B का ज्वाइन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा क्योंकि B is at a higher level than A. So इन दोनों का ज्वाइन B हो जाएगा और इन दोनों का मीट A हो जाएगा because A is at a lower level.
सो अगर ये है तो हमारा ज्वाइन भी, ए और बी का ज्वाइन भी इस ये जो आपने ए और बी अगर आप ये ले रहे हैं तो ए हमारा यहाँ हो जाएगा और हमारा बी हमारा यहाँ हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। अब इन दोनों का ज्वाइन क्या है, ये है। इन दोनों का मीट क्या है, ये है। ये दोनों इसी में आ रहे हैं। सो बोथ ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट इन एल। तो ये हो गया। अब हमने आगे नहीं लिखा है बट एक दो लाइन आप लोग और लिख दीजिएगा। नाउ टेक एनी एलिमेंट अदर एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू एल। अगर देखिए एल में दो ही एलिमेंट है ए और बी, तो ये हमने जो लिखा है प्रूफ कंप्लीट हो गया। बट अगर और एलिमेंट है सो देयर विल एग्जिस्ट एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू एल सच दैट सी या तो ए से छोटा होगा या सी या बी से बड़ा होगा। वाई? क्योंकि ये चेन है, टोटली ऑर्डर्ड है और ए इज एट अ लोअर लेवल देन बी, तो ये सी या तो ए के नीचे आएगा या बी के ऊपर आएगा। एंड कहीं पे भी आए, दोनों केसेस में अगर सी के नीचे आता है, सॉरी ए के नीचे आता है, तो ए ज्वाइन सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड सी ज्वाइन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ये सी के ऊपर आता है तो बी ज्वाइन सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एंड सी ज्वाइन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो भी उस हर एलिमेंट का ज्वाइन और मीट उसमें ही रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आपके सेट के एलिमेंट्स खत्म हो गए तो ठीक है, नहीं तो एक और एलिमेंट डी एग्जिस्ट करेगा जो इसी तरह कंटिन्यूएशन में आप लिख सकते हो। एंड दिस विल फॉर्म अ चेन and therefore this will form a chain, and you know chain is a lattice, so it will be a lattice. ओके अब देखिए ये हमें दिया गया है एंड वी हैव टू चेक वेदर इट्स अ लेटेक्स और नॉट। अब हमने तो ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके लेट्स वेरीफाई। अब देखिए बी और डी का ज्वाइन क्या है, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पे मिल रहे हैं, तो इनका ज्वाइन हो गया ई। और नीचे कहाँ पे मिल रहे हैं, ए पे मिल रहे हैं, तो इनका मीट हो गया ए। अब बी और सी का देखिए, बी और सी कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पे, तो इनका ज्वाइन हो गया ई और इनका मीट हो गया ए। इसी तरह से सी डी का आपका हो गया। नाउ बी और ई, बी और ई एक दूसरे से कनेक्टेड है, ई इज एट हायर लेवल, तो इन दोनों का ज्वाइन क्या हो गया, ई हो गया। और इन दोनों का मीट हो जाएगा बी बिकॉज बी इज एट अ लोअर लेवल। इस तरह से आप सारे पेयर्स को चेक कर सकते हैं, सारे पेयर्स का ज्वाइन और मीट सब इसी में होगा एंड देयरफॉर दिस इज अ लेटेक्स। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए सिंगल टॉप है, इसमें भी हमने भूल गए सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है, सो वी कैन गो अहेड फॉर चेकिंग वेदर इट्स अ लेटेक्स और नॉट। इधर भी सिंगल टॉप है सिंगल बॉटम है, सो वी कैन गो अहेड फॉर चेकिंग वेदर इट्स अ लेटेक्स और नॉट। अब देखिए ए और ई, ई इज एट अ हायर लेवल, तो इनका ज्वाइन ई हो गया। और ए और ई में ए लोअर लेवल पे है, तो इनका मीट ए हो गया। ए और डी, ए और डी, ये देखिए ए और डी दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं बी पे, तो इनका ज्वाइन हो गया बी। और ए और डी नीचे कहाँ पे मिल रहे हैं, सी पे, तो इनका मीट हो गया सी। अब अगर आप डी और एफ अगेन दे आर जॉइंट बाय द सेम लाइन, तो इसका ज्वाइन एफ हो जाएगा और मीट डी हो जाएगा। अब बी और एफ का देखें, बी और एफ कहाँ जाके ऊपर मिल रहे हैं, ई पे, सो बी और एफ का ई होगा, दिस विल बी बी और एफ का ज्वाइन हो जाएगा ई एंड बी और एफ का मीट हो जाएगा डी। एंड जो पेयर्स छूट गए हैं वो आप अपने आप चेक कर सकते हैं। अब देखो ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में सिंगल टॉप है और सिंगल बॉटम है, सो दिस कैन बी अ लेटेक्स। नाउ लेट्स चेक हियर,
डी और ई, डी और ई नीचे कहाँ पे मिल रहे हैं? एक तो ये मिल रहे हैं सी पे और दूसरी जगह ये कहाँ मिल रहे हैं? मिल रहे हैं बी पे। दैट मीन्स इनके जो दो लोअर बाउंड हैं वो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स ये इनका D meet E will not exist, so this will not be a latex. So this is an example of a essay diagram जिसका single top है, single bottom है, still this is not a latex. इसी तरह से अगर आप इसका वो देखें अपर बाउंड, सो B और C कहाँ पे मिल रहे हैं? ये E पे मिल रहे हैं और यहाँ पे B और C किस पे मिल रहे हैं? D मिल रहे हैं. So least upper bound also does not exist because it's not unique. Upper bound is not unique, therefore least upper bound will not exist and therefore this is not a latex. So ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार सिंगल टॉप सिंगल बॉटम देख लिया तो हमेशा लेटेक्स होगा ही होगा. अगर सिंगल टॉप सिंगल बॉटम नहीं है तब वो डेफिनेटली लेटेक्स नहीं होगा, लेकिन अगर है then it does not guarantee you that this will be a latex. उसको आपको चेक करना ही पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे भी सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है और ये लेटेक्स है. चलो इसको वेरीफाई करो, इसके सारे पेयर्स को देख के कि जॉइन और मीट इसमें है या नहीं है. अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछो, सो आई टेल यू. एक किसी भी पेयर का अगर आपको जॉइन या मीट फाइंड करने में दिक्कत हो रही है तो पूछ लो, आई विल टेल यू. मैम आ गया. हाँ मैम आ गया, सबका यूनिक आ रहा है. ओके. Let L be set of all divisors of 8 and this be divisibility relation on L, then show that L with this divisibility relation is a latex. ये जैसे हमने यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर का एग्जांपल दिया था. यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर का है, यहाँ पे अब हमने LCM और GCD का लेके वही एग्जांपल हमने लिया है, बट वी आर कंसिडरिंग L as divisors of 8, so that will contain 1, 2, 4 and 8. Or A join B will be supremum of AB, that is least common multiple of A and B, and A meet B is infimum of AB, that is greatest common divisor of A and B. So this is how you define join and meet in this case. तो अब देखिए 1, 2, 4